B should be correct. Means second. Now question number 67. Dissection of a dead body to find the cause of death. Autopsy. It is related to dead body. But here is a living body, then biopsy. Okay. Then change answer should be change according the according to question. Now question number 68. A person without training or experience in a skill or subject. Novice. Option 4 should be correct. 69. One who stays away from school with permission. Are you agree this question? This question is right or wrong? Anyone tell me? One who stays away from school with Without permission. permission होगा मैम, without permission. Exactly. Here is a without permission. Okay. So Okay. just wait. Here is a not with the with without permission. Okay. Then answer should be truant. Truant. डी Yeah. होगा मैम इसमें। Truant. Yeah. Truant. Now question number 70. The act of killing a whole group of people, especially a whole whole race. Here is a genocide. Option Genocide. 4 should be. डी ऑप्शन। Yeah. Now question number 71. A government in which all religions are honored. Secular. Very famous in politics. This word is a very famous in politics. Now 72. A place where government public records are kept. Archive. Option A should be correct. Now 73. Living together of a man and woman without being married to each other. Very trending this type lifestyle in this time or society. Concubinage. Option 4 डी should ऑप्शन be होगा। correct. Sorry? Yeah, concubinage. Now 74. Too much official formality. Red tapism. Option second should be correct. Now dry weather with no rainfall. Drought. Which should be correct? Option third should be correct. DROUGST. Okay. Here is a draft. DRAUGST. Okay. It's mean like a praroop. Okay. Now 76. A sly look that is a lustful. Leer. Option A should be correct. Now next question. Question number 77. A jocular person who is full of amusing anecdotes. Wag. 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 Wag means like full stop person. Okay. जो ऑलवेज आपको थोड़ा सा वो हंसमुख मिजाज का थोड़ा सा मजाकिया अंदाज का ओके नाउ वैग कॉल हिम वैग डीप इन थॉट pensive el pensoriso like a el pensoriso now 79 without risk of punishment impunity option second should be correct now excessive preoccupation with one's health hypochondria जब हमारे दिमाग में एक भ्रम हो जाता है हल्का सा भी कहीं पे दर्द हुआ कहीं मेरा बोन तो नहीं टूट गया कहीं हड्डियों में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ गई मतलब एक्सेसिव जब थॉट हो जाए अपने हेल्थ को लेकर के उसको बोलते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया नो नेक्स्ट क्वेश्चन 81 द वर्ड सी फाइव ऑर्डर्स आर इमेजेस आइडोलेट्री ऑप्शन 3 शुड बी करेक्ट something that is poisonous or unhealthy toxic option second should be correct now 83 a remedy for all disease panacea option second should be correct a hater of mankind misanthrope option A should be correct now 85 irresistible craving for alcoholic drinks dipsomania very famous word and important also dipsomania
Now, 86. One who deserts his principles are parties. Renegade. Option 3 should be correct. Now, 87. One who intervenes between two or more parties to settle differences. Intermediary. Option second should be correct. Now, 88. The habit of always admiring oneself. Narcissism. Option 3 should be correct. Now, 89. To take back, withdraw or renounce. Recant. परित्याग करना. Recant. त्यागना. A pain for small animals. Hatch. Option A should be correct. Now, a woman having more than one husband at the same time. Polyandry. Polyandry, na? Option A should be correct. Now, next question 92. Feeding of food made both of plants and flowers, like a human. Omnivorous. Option 3 should be correct. Now, one who destroys images or attacks on popular beliefs, like one work of John Milton, Iconoclasts, right? In 1649. Okay, then here is a iconoclast. Option 3 should be correct. Now 94. Violation of something holy and sacred. Sacrilege. Option 3 should be correct. Next question 95. A place where nuns live and work. Convent. Option 4 should be correct. Now today's last question. General view of a person's character. Profile. Option second should be correct. Yes. Do you have any problem related any question? Then we discuss here. No problem. Yes. Have you? Okay. Thank you. Mhm. थैंक यू वेरी मच। देखिए हम लोग जो है टर्न के हिसाब से आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। ग्रामर में हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं, सारे के सारे उधर वो 12 जो टेंस होते हैं वो तो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आगे इम्परेटिव वहां से स्टार्ट होना है। आज जो है हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में जो है हम लोग जो है रोमांटिक एज कंप्लीट कर लिए थे, विक्टोरियन एज पढ़ रहे हैं। क्यों? यही तो था। यस। चलिए तो विक्टोरियन एज जो है हम आज स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट एक मिनट। स्क्रीन विजिबल है सभी साथियों को? Yes, sir. विक्टोरियन एज। विक्टोरियन जनरली जो है कब से स्टार्ट होता है? वैसे तो कुछ लोग 32 तक मानते हैं, 32 से 1870 1832 रिफॉर्म बिल से, बट कुछ लोग मानते हैं 1837 द असैसिनेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया।
1837 में क्वीन विक्टोरिया थ्रोन पे आती हैं और 32 में रिफॉर्म बिल आता है, तो 32 से भी कंसीडर किया जाता है और 37 से भी किया जाता है। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। बट इसका जो एंड है, डेथ ऑफ विक्टोरिया इन 1901 यहाँ माना जाता है। मतलब 1832 से लेकर के 1901 या फिर 1837 से लेकर 1901 लास्ट वाला वही सही। द ईयर 1870 is often used to divide early Victoria from late Victoria। 1870 देखो 1832 से लेकर के 1901 के पीरियड को अगर दो भागों में बांटते तो 1870 जो है एक मिड पॉइंट आता है। इसके पहले का जो है अर्ली विक्टोरियन माना जाता है और इसके बाद वाला जो है लेट विक्टोरियन होता है। नो डाउट विद द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया देयर बिगेन अ न्यू गोल्डन एज। एक तो गोल्डन एज हम लोगों ने एलिजाबेथन पीरियड में पढ़ा था, दूसरी जो है ये कहाँ पे आ गई, विक्टोरियन एज में आ गई। इन द लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एज अ होल द लिटरेरी ऑफ द पीरियड इज क्रिटिकल ऑफ द एज ऑफ रेदर देन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट। द पॉपुलर फिलोसफी ऑफ दिस टाइम वाज यूटिलिटारियनिज्म। इस चीज को ध्यान रखिएगा। कंपल्सेंसी एंड द ऑप्टिमिज्म। जी, कंपल्सेंसी ऑफ द ऑप्टिमिज्म आर द की नोट्स ऑफ द विक्टोरियन एज। देखो ऑप्टिमिज्म तो इसका की नोट्स है ही है, बट इसमें जो है पेसिमिस्ट का जो राइटर होंगे इस एज के वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डिफरेंट जो है व्यू देते हैं। विक्टोरियन एज एवरीथिंग इज अ मेंटल स्ट्रगल एंड द स्पिरिचुअल डिससेटिस्फिकेशन आर द की नोट्स ऑफ दिस लिटरेचर। यहाँ पर जो है काफी मानसिक द्वंद्व पाया जाता है इस एज में, और ये स्पिरिचुअल जो है डिससेटिस्फिकेशन मिलता है, और यहाँ पर कई चीजों में कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है। बेसिकली ये देखा गया कि ओल्ड व्यूज वर्सेस न्यू व्यूज, रिलीजियस वर्सेस साइंस, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है ज्यादा निकल के आए। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज? क्या क्या चीजें हो सकती? इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन जो है हम लोगों ने रोमांटिक एज में पढ़ लिया था। लेट रोमांटिक एज में इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन हुआ और विक्टोरियन एज में जो है आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन स्थापित हो गया था। बट अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन पूछ लिया जाए तो दोनों में होगा। लेट विक्टोरियन में भी था और लेट रोमांटिक में था और अर्ली विक्टोरियन में। तो ये दोनों में चीजें हैं, रोमांटिक में भी पहुंच जाएगा आपका और यहाँ पर विक्टोरियन में भी है। किस चीज की बात कर रहे हैं? रेवोल्यूशन की, नॉट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन अगर पूछ लिया जाएगा तो दोनों में पहुंच जाएगा। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी का जो है काफी डेवलपमेंट हो गया था। एक्सेप्शन ऑफ द रेलवे डेवलपमेंट, स्टीम पावर्ड एक्सपेंशन, इस चीज का विस्तार हुआ, स्टीम पावर्ड आ गई। ग्रोथ ऑफ द फैक्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द ब्रिटिश इकोनॉमी एंड सोसाइटी। सोशल क्लासेस, इस जो पीरियड का सोशल क्लास था वो तीन भागों में डिवाइड था। एक तो अपर क्लास था, दूसरा मिडिल क्लास था और तीसरा जो है वर्किंग क्लास था। ये तीन भागों में सोसाइटी जो है डिवाइड थी उस समय। अपर क्लास कंसिस्ट ऑफ द अरिस्टोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी जितने अपर क्लास में, लैंडर जेंट्री एंड द वेल्दी इंडस्ट्रियलिस्ट सारे इसी में आते थे। वाइल मिडिल क्लास कंप्राइज द प्रोफेशनलिस्ट, जो मिडिल क्लास होता था वो जनरली जो है प्रोफेशनलिस्ट माना जाता था मिडिल क्लास को। मर्चेंट वगैरह होते थे, प्रॉस्परस एंड बिजनेसमैन होते थे। द वर्किंग क्लास which made up the majority of the population often lived in the difficult condition, इनकी बड़ी दयनीय स्थिति हुआ करती थी। Faced the challenges such as low wages, poor working conditions, ये सारी मुसीबतें जो है लोअर क्लास के सामने आया करती थी। मॉरलिटीज एंड वैल्यू की अगर हम बात करें विक्टोरियन एज में, विक्टोरियन एरा वाज द कैरेक्टराइज्ड बाय द
स्ट्रिक्ट मॉरल कोड, एम्फेसिस ऑन द प्रॉपर बिहेवियर, बहुत ही सच्चे मतलब सधे भाषा का इस्तेमाल करना, शब्दों का इस्तेमाल करना, रहन सहन बहुत बढ़िया अच्छे से वेल अप टू डेट रखना, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस था। विक्टोरियंस वैल्यूड फैमिली, रिलीजन, हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन, बहुत आत्मसंयम, बैठेंगे तो बड़ा देख दाख करके कोई कहीं हमारा कोई सूट दिख तो नहीं रहा कहीं पर, ऐसा तो नहीं कोई हमने गलत तरीके से हम बैठे हुए हैं, हाथ कहाँ रखना चाहिए, पैर हिलाना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि बैठे हैं तो बाल खुजला रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजों को अपना सेल्फ मतलब बोलते व्यक्तित्व पर ज्यादा चीजों को ध्यान दिया जाता था। दीज वर द स्ट्रॉन्ग ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्टिकुलरली अमंग द अपर एंड मिडिल क्लास, ये सारी चीजें जो है अपर और मिडिल क्लास में ज्यादा चीजें फॉलो की जाती थी। जेंडर रोल की बात अगर करें, विक्टोरियन सोसाइटीज हैड द क्लियर जेंडर रोल्स एंड द एक्सपेक्टेशंस। वुमेन वर जनरली एक्सपेक्टेड टू डोमेस्टिक वर्च्यू फोकसिंग ऑन देयर रोल ऑफ वाइफ। यहाँ पर माना जाता था कि जो वुमेन्स हैं वो जनरली जो है घरेलू रहे, घर में घरेलू काम करें, वर्चुअस रहें, ईमानदार रहें, फोकस करें अपने रोल पे किस चीज के, एक आदर्श वाइफ का और मदर का और होम मेकर, बस यही तक के जो है माना जाता था कि महिलाएं सीमित रहनी चाहिए। दे हैड लिमिटेड अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत कम जो है उनके पास अवसर होते थे एजुकेशन के और रोजगार के आउटसाइड द होम, घर के बाहर। मेन एंड अदर हैंड्स वर एक्सपेक्टेड टू बी द breadwinners एंड द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब वो घर की जो है गृहिणी के मुखिया के रूप में भी वहां पर रिप्रेजेंट की जाती थी। साइंस एंड प्रोग्रेस की अगर बात करी जाए विक्टोरियन एज में, द विक्टोरियन पीरियड विटनेस सिग्निफिकेंट द एडवांसमेंट ऑफ द साइंस, जैसे इंक्लूडिंग द डिस्कवरीज ऑफ द चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आता है वो यहीं से आकर के एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट कर देता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरीज ऑफ द सच एज द एवोल्यूशन, दिस एरा मार्क्ड बाय द fascinating with the progress, exploration and the technological advancement, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के विषय में ज्यादा जो है एरा जाना जाता है। लिटरेचर एंड आर्ट की अगर बात करें तो विक्टोरियन एरा प्रोड्यूस द रिनाउंड ऑथर्स एंड आर्टिस्ट इंक्लूडिंग द चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टेन, एमिली ब्रोंटे, ऑस्कर वाइल्ड। विक्टोरियन लिटरेचर ऑफ्टन रिफ्लेक्टेड द सोशल इश्यूज, द मॉरल डिलाइटमेंट ऑफ दैट टाइम, उस समय के इश्यूज को डिपिक्ट करते थे। द एरा आल्सो वाज द राइज ऑफ द गोथिक लिटरेचर, इस एरा में जो है गोथिक लिटरेचर काफी जो है ज्यादा लिखा गया। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्री रेफ्रेटरीज ब्रदरहुड, इसी एज में जो है प्री रेफ्रेटरीज ब्रदरहुड का जो है ज्यादा रोल वाला था इन द आर्ट वर्ल्ड। कॉलोनिज्म एंड एम्पायर्स, कॉलोनिज्म जो ब्रिटिश हुकूमत की ज्यादातर हर जगह पर कॉलोनीज थी, इंडिया भी एक अपना कॉलोनी था उस समय का। ड्यूरिंग द विक्टोरियन रेंज द ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंडेड द सिग्निफिकेंस द रीचिंग ऑफ द हाई टर्म्स ऑफ द इरेशनल पोसेशन, द एम्पायर कंप्रेस्ड द वेरियस colonies, territories across the globe, and the Victorian values, cultures, influence were exported of these regions. जो उस समय के विक्टोरियन वैल्यूज थे, जो विक्टोरियंस के टर्म्स थे उस समय के, कॉलोनीज ज्यादा होने की वजह से पूरी दुनिया में इन चीजों का व्यापक प्रसार प्रसार हो गया। व्हाट आर द वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज थी? विक्टोरियंस वैल्यूज कंपास्ड अ वाइड रेंज ऑफ द बिलीफ्स एंड द प्रिंसिपल्स, उनका एक विश्वास और अपने सिद्धांतों पे बहुत ज्यादा यहाँ पर जोर दिया जाता था। प्रेजेंट ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड, while it is the important to note that all Victorians adhered strictly to these values, they provide general understanding the dominant moral society's ideas of the time. Here are some key features of the values of Victorian age. नंबर 1 की अगर करें, morality and respectability, ये चीज बहुत ज्यादा करी जाती थी, morality की ज्यादा बात करी जाती थी, respectabilities की ज्यादा बात करी जाती थी। फैमिली एंड डोमेस्टिसिटी, परिवार के और उनके घरेलू समस्याओं पर ज्यादा डिपिक्ट किया जाता है उस समय के लिटरेचर में। जेंडर रोल्स, महिलाओं को ज्यादातर घर में और पुरुषों को बाहर के कामों के लिए ज्यादातर माना जाता था कि वही से ही बने। फैमिलीज में जो है कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती थी जहाँ पर जो है फीमेल्स भी हेड मानी जाती थी। रिलीजन एंड फेथ, ये जो है जो फेथ था ये डिक्लाइन होने लगा था,
रिलीजन पे लोगों का भरोसा कम होने लगा था, क्योंकि अभी तक मान रहे थे कि पूरी दुनिया मानव की जो सृष्टि की रचना हुई है वो जो है गॉड ने करी है। लेकिन यहाँ से जो है जहाँ ओरिजिनल ऑफ स्पीसीज आता है चार्ल्स डार्विन का, वहाँ से माना जाता है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट एवोल्यूशन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भगवान ने पैदा किया हो। तो ये चीजें हुआ करती थी। जो चर्च था उसका प्रभुत्व जो है कम होने लगा था। एथिक वर्ष जो है यहाँ पर ज्यादा चीजें बिलीव होने लगा था। सोशल एटिकेट एंड डिकोरम का बोलबाला हो गया था। एजुकेशन एंड द सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ज्यादा लोग फोकस कर रहे थे। हालांकि इसके पहले वाली जो एजेस रही हैं, न्यू क्लासिकल की रह लो, ये देख लो, या फिर इसके पहले भी, तो वहाँ पर लोग जो है रिलीजियस ज्यादा हुआ करते थे, मानते थे कि काम करो और धर्म के आस्था में जुटे रहो, भगवान का भजन करते रहो और जीवन जो है कल्याण हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। बट यहाँ से जो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एजुकेशन की तरफ लोगों का मूवमेंट ज्यादा होने लगा। कॉलोनिज्म एंड इम्परिज्म सिविलाइजेशन, जो ब्रिटिश एम्पायर था ज्यादातर दुनिया के देशों में फैला हुआ था, तो वहां तक के जो है अपनी शाहीगिरी ज्यादा चलती थी ब्रिटिश हुकूमत की। तो ये इस एरा का जो है फेमस फीचर माना जाता है। आगे हम बात करें हिस्टोरिक बैकग्राउंड की, क्या हिस्टोरिक बैकग्राउंड इसका हो सकता है। विक्टोरियन पीरियड वाज द टाइम ऑफ द सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल एंड द चेंजेस ऑफ द कैरेक्टराइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन इंपीरियल एक्सपेंशन, क्या मतलब होता है कि जो शहरीकरण है वो ज्यादा होने लगा और जो औद्योगिकरण है वो जो है यहाँ पर खूब हो रहा था। औद्योगिकरण और शहरीकरण ये बहुत ज्यादा जो है इस फील्ड, इस एरा की एक पहचान मान सकते हैं। औद्योगिकरण और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से भी इस एरा को जाना जाता है। 18th सेंचुरी भी आपसे पूछा सकता है कि व्हिच सेंचुरी इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18th सेंचुरी हो जाएगी, एरा नाम पूछ दिया जाएगा तो विक्टोरियन पीरियड हो जाएगा। Had the profound the British society and economy during the Victorian era, industrialization reached at the peak। यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है पीक पर था। लीडिंग द एडवांसमेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही थी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था। द कंट्री एक्सपीरियंस्ड द शिफ्ट फ्रॉम द एग्रियन बेस्ड ऑफ द सोसाइटी टू द इंडस्ट्रियल वन। ग्रामीण से लेकर के जो है जो वहाँ का पौराणिक सोसाइटी थी वो बदल रही थी। ब्रिटिश एम्पायर बहुत ज्यादा इसका जो एक्सपेंडेशन था, जो इसका विस्तार था वो काफी ज्यादा हो गया था। और इसको मान सकते हैं कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी, जो उसका माना जाता था कि सूर्य जो है इसका अस्त नहीं होता ब्रिटिश हुकूमत का, तो वो इस एरा को पीक मान सकते हैं। यहाँ से जो है उसका डिक्लाइनेशन जो है चालू हो जाता है। पॉलिटिकल पावर जो है यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत के पास बहुत ज्यादा थी। इसी के अंतर्गत आते थे कंट्रीज इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के काफी रीजन जो है यहाँ पर इनका एक शासनिक का हिस्सा बने हुए थे। सोशल चेंजेस की अगर हम बात करें तो विक्टोरियन एरा वाज द मार्क्ड बाय द सिग्निफिकेंस सोशल चेंजेस रिफॉर्म्स, जैसे पॉपुलेशन ग्रू द रैपिडली, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा से बढ़ने लगी, पर्टिकुलरली अर्बन एरिया में। लीडिंग द ओवरकम द पॉवर्टी, इसी से जो है गरीबी बहुत ज्यादा आ गई। एंड सोशल इनइक्वलिटी, और सामाजिक असमानता भी आ गई। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट द इमर्ज टू द एड्रेस इशू सच एज द वर्कर्स राइट, पब्लिक हेल्थ। कौन कौन से चीजों पे ज्यादातर फोकस किया जाने लगा? उनके पब्लिक राइट्स पर और उनकी हेल्थ पर और एजुकेशन पे और ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर, इन सब चीजों पर यहाँ पर फोकस किया जाने लगा। इसके पहले जो गरीब लोगों का ट्रीटमेंट ज्यादातर नहीं होता था, दास प्रथा थी, और यहाँ पर दास प्रथा का उन्मूलन होता है यहीं से, और आगे की चीजें बढ़ती हैं। टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट, द विक्टोरियन पीरियड विटनेस द रिमार्केबल टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट एट दैट ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी डेवलपमेंट ऑफ द टर्म्स एंड पावर। जैसे कि रेलवे का विकास यहाँ पर होता है, टेलीग्राफी का होता है, एंड लेटर इलेक्ट्रिसिटी, एलिवेटेड एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्री। इन सब चीजों का विकास इसी एरा में माना जाता है। आपसे 18th सेंचुरी के नाम से भी क्वेश्चन पढ़ा सकता है और विक्टोरियन एरा के नाम से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये सेक्टर जो है कॉमर्शियल सेक्टर के नाम से भी मतलब जो एरा है ये कॉमर्शियल एरा के नाम से भी जाना जाता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अगर बात करें, विक्टोरियन एरा वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरियस पॉलिटिकल चेंजेस, जैसे कि पीरियड ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम लोगों ने पढ़ी थी, जो विलियम और मैरी ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित करा था, वो जो है पार्लियामेंट्री की तरफ जो है मूव करने लगी। पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेसी की तरफ जो है वो आगे बढ़ने लगी। यहाँ पर जो है जो क्राउन था, क्राउन की जो है पावर कम होने लगी और
पावर जो है यहीं से बढ़ना चालू हो गई थी। विद द मोनार्की पावर द डिमनाइजिंग द पावर एंड द पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर इंक्रीजिंग, वहां पर डिमनाइजिंग होने लगी और प्राइम मिनिस्टर की पावर जो है बढ़ने लगी। द ग्रेट रिफॉर्म एक्ट 1832 एक्सपेंड द सफ्रेगेट्स, और जो 1832 आया इसने जो ऊंट का, सफ्रेगेट मतलब ऊंट का अधिकार लोगों को दे दिया। हालांकि जो है ये अधिकार कुछ सीमित लोगों तक ही था। albeit यद्यप still limited to the certain segment of the population, वहाँ की पॉपुलेशन के लिए में बहुत कम लोगों तक के ये अधिकार प्राप्त थे। जैसे कि किसको किसको, रिफॉर्म बिल जो आता है, फर्स्ट रिफॉर्म बिल 1832, ओल्ड बैरक जो पुराने समय के सामंती थे, वर द अबंडेंट और एडेड द एडजस्टेंट अदर द वोटिंग्स आर द एक्सटेंडेड मेल और द 10 पाउंड। उस समय के जो बहुत पुराने लोग हुआ करते थे उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था। जबकि 1832 का जो बिल आया रिफॉर्म बिल, यहाँ से जो 10 पाउंड के जो ओनर थे उन तक के जो है वोटिंग अधिकार को एक्सपेंड कर दिया गया। बट सेकंड जो रिफॉर्म बिल आता है 1867 में, वोटिंग वाज द एक्सटेंडेड टू वर्किंग क्लास तक के भी वोटिंग को बढ़ा दिया गया कि वर्किंग क्लास के लोग भी वोट दे सकते हैं। रिफॉर्म बिल 1884 ऑल मेंस अबव 21 इयर्स कुड वोट, जो थर्ड रिफॉर्म बिल आया था 1884 में, इसके अनुसार हर 21 वर्ष का जो आदमी है, मेन है, वो वोट दे सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि वर्किंग क्लास को जो है वोटिंग का राइट कब मिला, फर्स्ट रिफॉर्म बिल से मिला कि सेकंड रिफॉर्म बिल से मिला, तो ये सेकंड से मिला। अगर ये पूछ दिया जाए कि ऑल मेन अबव 21 ईयर्स कब मिला इनको वोटिंग राइट, तो 1884 में मिला और थर्ड रिफॉर्म बिल से मिला। अगर एक इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन ये बन सकता है कि एक्ट ऑफ 1918 वोमेन अबव 30 ईयर्स कुड वोट, 30 ईयर्स के ऊपर की जितने भी वुमेन्स थी वो वोट कर सकती थी। किसमें, एक्ट 1918 में, मतलब ये 1900 के बाद की बात है, कितने दिन के बाद वुमेन्स को वोट देने का राइट मिलता है, क्योंकि वुमेन्स से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ से विक्टोरियन एज में अगर हम पढ़ रहे हैं तो एक तो ये चीजें ध्यान रखने वाली, दूसरे विक्टोरियन उनकी टेनिसन के वर्क ध्यान रखने वाले, इसमें उन्होंने वुमेन एजुकेशन को एम्फेसाइज किया है। अगला जो एक्ट आता है 1928 ऑल मेंस एंड वुमेन अबव 21 इयर्स कुड वोट। अब यहाँ पर जो आता है 1988 का एक्ट, देखो मैं वुमेन्स को और मेंस 21 ईयर सबको एक साथ जो वोटिंग राइट मिलता है तो वो रिफॉर्म बिल से नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये एक्ट स्पेशल आते हैं, इन एक्ट से मिलता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे मोल्ड कर सकता है। हालांकि टीजीटी में कम उम्मीद है, लेकिन पीजीटी, जीआईसी या फिर ऊपर के एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी जो है आपसे ज्यादा बन जाती है। स्लेवरी एबोलिशमेंट जो होता है ब्रिटिश एम्पायर में 1839 का, ये एक जीएस का भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है। 1839 में स्लेवरी का एबोलिशमेंट हो जाता है। फर्स्ट इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस, ये तो वेल नोन है, 1857 में होता है, वो इसी काल का एक मेजर फीचर है। अगला है द कल्चर एंड द इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स, कौन कौन से होते हैं? एम आई ऑडिबल? स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर, क्लियर है सर। बोल दीजिए। थैंक यू जी सर। कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स की बात अगर करें, द विक्टोरियन पीरियड वाज द टाइम द सिग्निफिकेंट कल्चर एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स लाइक दैट द एरा विटनेस ऑफ द राइज ऑफ रोमांटिक मूवमेंट्स इन द लिटरेचर फॉलोड बाय द इमर्जिंग ऑफ द रियलिस्टिक नेचुरलिस्टिक मूवमेंट चार्ल्स डिकेंस। देखो जो रोमांटिक पीरियड में फीचर्स थे, जस्ट जो है उसको थोड़ा यहाँ पर अलग बढ़ा कर दिया, एम्फसाइज कर दिया कि हालांकि रोमांटिक यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन वो रोमांटिक नहीं मिलते जैसे कि रोमांटिक पीरियड में मिलते थे। जैसे कि यहाँ पर चार्ल्स डिकेंस यहाँ पर जो है रियलिटी को ज्यादा दिखाने चाह रहे। जैसे वहां पर रोमांटिक पीरियड में अगर देखते हैं तो जो पोएट्री लिखी जाती थी तो वो कहीं वास्तविकता से अलग हट करके चीजें, ज्यादा कुछ काल्पनिक चीजें लिखी। यहाँ पर जो है ओरिजिनलिटी को दिखाने जाएगा, रियलिस्टिक चीजें जो दिखाने लगी, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस है, ब्रोंटे सिस्टर्स है, ऑस्कर वाइल्ड है, जॉर्ज इलियट है, ये सब जो है अपने वर्ष में चीजों को ठीक ठाक दिखा रहे थे। साइंटिफिक डिस्कवरीज इंक्लूडिंग द चार्ल्स डार्विन थ्योरी इवोल्यूशन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, क्या आता कब है? 1859। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि चार्ल्स डार्विन का जो वर्क है 1859 में आता है। आल्सो हैड द प्रोफाउंड द इम्पैक्ट ऑफ द विक्टोरियन थॉट्स, जो विक्टोरियन की विचारधारा थी लोगों की, इंटेलेक्चुअल्स की, उसको काफी हद तक के वर्क जो है प्रभावित करता है।
colonialism and imperialism, the Victorian the height of the British colonial expansion। हम पहले बता चुके हैं कि ये पीक टाइम था ब्रिटिश हुकूमत का, सबसे ज्यादा जो कॉलोनाइजेशन इसी काल में हो रहा था। कॉन्क्वेस्ट एंड ट्रेड, काफी दुनिया में चीजें बढ़ रही थी इनकी। द एम्पायर, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री पावर्स along the notion of the civilization mission and shaped British attitude toward other cultures and influenced the policies toward the colonial governance। थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, देखो उस समय जो है, जो ये विक्टोरियन एरा था तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा बढ़ रहा था। जो वहाँ का अपर क्लास और जो एरिस्टोक्रेट था और जो भी वहाँ पर मिडिल क्लास था, इन लोगों के पास धन ज्यादा जाने लगा, क्योंकि यही सब लोग उस समय के अगुआ थे समाज के। और जो वर्किंग क्लास था उसके सामने काफी क्राइसिस आने लगे। तो पैसा लोगों के पास था, ब्रिटिश में सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास था, लेकिन मुसीबत भी लोगों के पास थी, क्योंकि पैसा एक ही जगह था। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी आती है कि पैसा जो है काम के हिसाब से लोगों को मिलना चाहिए। अरिस्टोक्रेट जो है, अगर कोई फैक्ट्री लगा लेता है एक बंदा, काम कितना करता है ये भी देखा जाना चाहिए। काम अगर वहां पर लेबर वर्क कर रहा है तो फिर लेबर वर्क को भी उसका पैसा मिलना चाहिए। हालांकि जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी एक डिटेल में आप अलग से जानते होंगे, पढ़े होंगे। यहाँ पर जो है पैसे का डिवाइडेशन की इनकी थ्योरी रही है। यहाँ पे इनका जो वर्क आते हैं दो, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए। दास कैपिटल 1867 में आता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दास कैपिटल 1867 में आता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में आता है। तो ये दोनों वर्क जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के। बाकी इनकी थ्योरी जो है आपको हायर में यूजी सीनेट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। लिटरेरी फीचर की अगर आप बात करें इस एज में, सोशल प्रॉब्लम्स नॉवेल्स, जहां पर कौन कौन सी थी? नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस एंड एलिजाबेथन गैस्केल टॉक अबाउट द सोशल कंडीशन ऑफ द इंग्लैंड। इन्फ्लुएंस ऑफ द साइंस एंड रिलीजन, दूसरा फीचर क्या है? देखो पहला फीचर क्या आपने पढ़ा? सोशल प्रॉब्लम। तो सोशल प्रॉब्लम ज्यादातर उस समय की दिखाई जा रही थी नॉवेल्स में, और उस समय के लिटरेचर और पूरे एरा पर जो है साइंस का प्रभाव काफी पड़ा। जैसे चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इंक्लूड द वर्क ऑफ टेनिसन एंड रल्स, कैरलिस, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट्स जो है इस एरिया इस पीरियड का काफी फेमस है। एज रिलीजियस मूवमेंट, ये पूछा जाता है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट जो है कैसा मूवमेंट है, तो आप ये आपसे पूछा जाता है कि कल्चरल मूवमेंट था कि रिलीजियस था? रिलीजियस, अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग बिलीफ ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड है। किसके अगेंस्ट था? वहां पर जो है चर्च की जो व्यवस्था थी उसके अगेंस्ट था। इन्फ्लुएंस मेनी राइटर, जो काफी राइटर्स को ये प्रभावित करता है। नॉवेल्स बिकेम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म द लिटरेचर, पेपर्स एंड प्रिंटिंग कॉस्ट बिकेम द चीपर, सस्ती हो गई थी। डिमांड फॉर द बुक्स इंक्रीज्ड, नॉवेल बिकेम वेरी पॉपुलर, इस समय की नॉवेल्स जो है काफी फेमस हो गई थी। विक्टोरियन मॉरलिटीज, रिवोल्ट, प्यूरिटनिस, थ्रिफ्ट, इंडिविजुअलिज्म, रिस्पेक्टेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस एंड इंटरप्रेन्योरियल मतलब क्या बोलते हैं, उद्यमता, स्व उद्यमता, स्पिरिट ऑफ द आइडियाज, सेल्फ मेड मैन, सिविलाइज्ड मिशन, evangelism, Victorian recognized the hard work, respectability, social differences, religious conformity. Writers such as the Tennysons adhere the Victorian morality. तो टेनिसन है, ये जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एज माने जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ द एज। काफी इनका महत्वपूर्ण योगदान इस एज में रहा है। साथ में इसके कैरलिन, मैथ्यू एंड्रल, हैक्ले, सटायर्ड द स्नोबिस्ट ऑफ दिस एज, तो सटारिक राइटर माने जाते हैं। Who are the notable writers are there and their works of this age? सबसे पहले ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट जो किसे माना जाता है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को माना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनने की उम्मीद भी आगे है। रिप्रेजेंटेटिव नॉवेलिस्ट कौन है? चार्ल्स डिकेंस है। मोस्ट पेसिमिस्ट मैथ्यू आर्नल्ड है। ऑप्टिमिस्टिक की बात करा जाए रॉबर्ट ब्राउनिंग है। ये ध्यान रखिएगा, पूरी जो एज है ये ऑप्टिमिस्टिक है। ये एज जो है पूरी ऑप्टिमिस्टिक एज मानी जाती है, बट इसके पेसिमिस्टिक है मैथ्यू आर्नल्ड, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट पेसिमिस्ट नॉवेलिस्ट जो है थॉमस हार्डी माने जाते हैं। 1830s के बीच में अगर देखा जाए तो कौन कौन से हैं, हम कुछ इसमें
कैटेगरीज बांट रखी है 30, 40, इनके बीच में कौन कौन से राइटर आते हैं और उनका वर्क कौन कौन सा है। इतनी चीज जो है हम जानते हुए चलेंगे। अगर हम पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर इनको हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे या पढ़े होंगे, जीआईसी में भी पढ़ रहे होंगे। अभी जो है हम लोग टीजीटी की पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही शार्ट में चीजों को देखते चलते हैं जो कि हमारे टीजीटी के लिए है। जैसे कि 1830s की अगर हम बात करें, थॉमस कैरलिल आते हैं, सार्टर रिसार्टर्स, ये इनका महत्वपूर्ण है वर्क। सार्टर्स रिसार्टर्स 1836 में आता है, ये पूछा गया है, पूछा जा सकता है। थॉमस मैकेवली लेस ऑफ द एंशिएंट रोम 1842 में आता है। 1814 की अगर हम बात करें, एमिली ब्रोंटी का वेदरिंग एज 1847 में आता है। चार्लोटे ब्रोंटी का जैन आई एरी 1847 में आता है। और मैक स्पेस ठैकरे का WM ठैकरे वैनिटी फेयर, ये इंपॉर्टेंट है, वैनिटी फेयर 1847 टू 1848 में आता है। तो आज का जो है हिस्ट्री का जो सेगमेंट है हमारा यहीं तक रहेगा। इसके आगे का जो है कंटिन्यू हम कल के सेशन में करते हैं। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत हो तो बात बता सकता हूँ। नो सर। Am I audible? चलिए Yes, ठीक है, sir. थैंक यू। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से कल। आई जो सर, थैंक यू, हैव अ गुड डे वाला। थैंक यू।